Hi everyone, I am Paras Batra, and today at My Expert Story Talks, we have Pricha, who is a multitasker, multi-talented person, and who I know maybe for almost a couple of years now. I saw or maybe met her on LinkedIn. I was just scrolling and मेरे को एक प्रोफाइल दिखती है जहाँ पे there's a girl who has been posting a lot about mental well-being, physical health, as well as work. So उनका टारगेट एक जॉनर पे नहीं है, उनका टारगेट मल्टीपल जॉनर्स पे था, and that's where it all started. So we connected and we had a good conversation. कि यार what exactly is she up to, and I was also very excited to talk to her about her plans. Welcome, Pricha. Welcome to My Expert Story Talks. How are you doing today? First, thank you for such a good and amazing introduction. And yeah, I'm good. How are you? I'm doing well. Thank you so much. So, ये वीडियो के लिए मैं प्रिचा के पीछे काफी टाइम से पढ़ा हूँ, एंड जब मैं पीछे फॉलो करता था, शी वाज अ सीए स्टूडेंट, एंड टुडे इट्स नॉट प्रिचा, इट्स सीए प्रिचा. So first of all, heartiest congratulations on that. Thank you so much. Like I said, there are multiple stories about you. So can you give it a brief, like what exactly do you do, or आप क्या क्या करते हो, so that people can get to know what exactly is Pricha Chawla all about. So professionally, I am working with one of the big fours as a Hmm. I'm in transfer pricing field, international taxation to be precise. Hmm. And from the passion perspective, I started my fitness journey for my transformation. And during that journey, I was like indulged and I wanted to like help the people like me who are like into studies, studying for long hours, and then they are like, यार पूरी body खराब हो रही है. Hmm. Mentally, they don't know what they are doing. They're just getting up, studying, and then sleeping. So I Hmm. wanted to help those people. Hmm. And at present, I have clients who are like mostly 90% of the time, 90% of the clients are CA students or CAs. And the Hmm. CAs are mostly working in the top firms only because they don't find time to like work out or manage their diet. And yeah, Hmm. so at present I'm doing these two things. And yeah, along with that, I'm also managing my social media. Okay, that sounds interesting. काफी सही and काफी बढ़िया लगा. Since I think you are from the CA background, even I am from the CA background, तो मुझे connect feel हुआ कि यार what exactly you are doing and how is it making our lives different. So that is a very good thing and काफी अच्छा लगता है ये सब चीजें जान के. And like you are a person with a fitness background, so these are few questions जो बहुत लोगों के होते हैं, मेरे भी हैं. Like first, that is how much workout is too much workout? Uh, ओके हाँ ये कॉमन क्वेश्चन है एक्चुअली इवन सीए बैकग्राउंड वाले लोग बट बाकी लोगों के लिए भी है Hmm. आई थिंक टू मच तो हम लोग जैसे लाइक प्रोफेशनल्स एंड सीएस हम लोगों के लिए टू मच कुछ नहीं इतना टाइम नहीं होता हमारे पास हमें हमें 1 घंटा भी मिल जाए वो भी बहुत है तो True, इट्स true. लाइक डिपेंड्स अगर एक कोई न्यू भी है अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड हिज फिटनेस जर्नी उसके लिए Hmm. इवन 40 मिनट्स आर एनफ उससे ज्यादा वो Okay. करेगा कर सकता है ऐसा नहीं है नहीं कर सकता बट Hmm. ग्रेजुअली इंक्रीज करना इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट अ पर्सन कैन डू एंड देन अगर हम आगे प्रोफेशनल्स की बात करें जो है ही पूरे फिटनेस के अंदर बॉडी बिल्डर्स हो गए दे वर्कआउट Hmm. फॉर अराउंड 2 hours और दे इवन वर्कआउट ट्वाइस अ डे 2 hours each Hmm. so too much can't be defined as such. Okay, okay. But for a regular person who is not, aiming workout as a profession, but for fitness, तो उस person के लिए I think आधा घंटा से 1 घंटा workout सही रहता है. What do you think? 40 to 1 hour is best time, Okay. manageable and doable also. ठीक है, ठीक है. And does workout play a significant role या diet का भी role उसमें रहता है? Like how does that work? It's like 50% आपका वर्कआउट मैटर करेगा एंड 50% डाइट मैटर करेगी जिम में क्या कर रहे हो वो भी मैटर करता है जिम के बाहर क्या कर रहे हो वो भी मैटर करता है तो यू कांट से दैट हाँ 80% हम डाइट देख लेंगे वर्कआउट छोड़ो.
ऐसा Okay, नहीं है, okay. डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ प्लेज इक्वल रोल। And I also got to know कि it's not just you do the cardio, running on treadmill and doing few jumping jacks, like spending 30-40 minutes on equipments, no resistance training. So does that make a difference कि उससे आप जल्दी पतले होते हो? Because there are few myths जो बहुत लोग बोलते हैं और they realize कि हमने इतना effort करा but there is no result in our health. इससे मुझे अपना ही सिनेरियो याद आ गया, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ना, मैं सिर्फ कार्डियो करती थी। मैं दो Okay? घंटे जिम कर रही हूँ ना, 2 घंटे कार्डियो कर रही हूँ। Mm-hmm. एंड ऐसा नहीं है वेट लूज हुआ, वेट लूज हुआ Mm-hmm. बट सस्टेन नहीं हो पाया, बिकॉज Okay. मेरी बॉडी में मसल तो बिल्ड हुआ ही नहीं ना। Hmm. एंड मसल बॉडी में होना इज, यू कैन से कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहता है, Hmm. इन्वॉल्व कुछ अमाउंट ऑफ वेट ट्रेनिंग। अब उससे बेनिफिट अगर मैं सिंपल सा बोल रही हूँ तो मेजर बेनिफिट इज कि हम, जब हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में भी है ना, इट इज रिकवरिंग, जब हम एक्सरसाइज नहीं Hmm. कर रहे हैं Hmm. Hmm. तो वो Hmm. बॉडी रिकवर कर रही है, बिकॉज हमने अपने मसल्स को तोड़ा है बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो रिकवर Hmm. करते करते भी इट विल burn some amount of calories which will help Hmm. again in losing weight। एंड ये Okay. सिनेरियो हम कार्डियो के टाइम पे फेस नहीं करेंगे। Okay. Understood. तो वेट ट्रेनिंग इज ऑब्वियसली लाइक इंक्लूड करना इज अ मस्ट फॉर नाउ। या Hmm. Hmm. I think weight training is also known as resistance training, if I am not wrong. यस, Is it? Okay. ठीक एडिंग है सम मतलब वेट, either it's your body weight or external weight, anything। Okay. And like again, these are very casual talks. So मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं आपसे पूछ रहा हूँ या आपके दिमाग में जो आ रहा है आप मुझे बता रहे हो. And I think that's the beauty of श्योर my श्योर। expert story talks. So procrastination is one big factor क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, there was a time before COVID I was super fit. मैं बहुत वर्कआउट करता था. Like despite मेरा पूरा दिन बिजी हो, I have to go to office, मैं सुबह जाता था जिम. And then now is the time after COVID चला गया but उसके बाद भी वो procrastination नहीं गया. So what do you think is the problem here with people? Because it's the problem with me as well. तो मेरे लिए भी helpful रहेगी. एट प्रेजेंट मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता Okay. है, कितना भी डिसिप्लिन आ जाए, कितना भी मोटिवेशन आ जाए, हम्म. एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि खुद को पुश करना ही होता है, नहीं यार चल लो, कुछ नहीं होता। ठीक है. एंड हम्म. इवन अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो वीक में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि पुश करना ही पड़ जाता है, बिकॉज ऑफिस होता है, इवन वर्क फ्रॉम होम हो, बट स्टिल टायरिंग हम्म. हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है वर्क फ्रॉम होम में ज्यादा ही काम करना पड़ता है यूजुअल से, तो Yeah. टायरिंग हो ही जाता है, तो वो पुश करना ही पड़ता है। तो इट डिपेंड्स कि माइंडसेट कैसा बिल्ड, अगर माइंडसेट है कि हमें हेल्थ की प्रायोरिटी देनी है, अब वही बात आ हम्म. जाती है ना कि कमा के अगर खुद पर नहीं लगाया तो क्या फायदा। But how do you motivate or how can you suggest people to be motivated कि यार नहीं मुझे आज प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलना है, इस ठंड में अपनी रजाई को छोड़ के, ब्लैंकेट को छोड़ के, कोजी कंफर्ट को छोड़ के बाहर जाना है. लाइक हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? इफ मैं एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव की बात करूं तो मेरा मोटिवेशन इज मेरी पुरानी पिक्चर्स ओके. जिसमें आई हाँ. एम बिट ओवरवेट एंड ऑल, वो मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर पढ़ाई हम्म. से रिलेटेड बात करें, सीए स्टूडेंट स्पेसिफिक या कोई भी कोर्स कर रहा हो, तो हम्म. ऑब्वियसली द एंड गोल इज द मोटिवेशन है कि करना तो है ही ना, स्टार्ट राइट. करे ही क्यों था। हम्म. तो बेसिकली यू कैन से मोटिवेशन विल बी योर गोल, व्हाट इज योर एंड टारगेट। Okay. And just to add to that, like मैं कहीं सुन रहा था, so it says that maybe you can set your fitness goal to some event. Suppose जो मैंने वीडियो देखा था वो मिड लाइफ पर्सन का था. Like he's a guy who is obese, has diabetes and everything, हम्म। and his doctor said कि अगर आप अब नहीं करोगे then you may fall sick and you may be exposed to cardiac issues. हम्म। तो ही सेट अ गोल कि यार मुझे अपनी बेटी की ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर करना है. एंड द डे ही थॉट कि यार आज मेरा मन नहीं है, ही यूज्ड टू जस्ट गेट अप एंड गो क्योंकि यार नहीं मुझे ग्रेजुएशन देखनी है, आई हैव टू गेट वर्किंग आउट. एंड दैट्स वन एग्जांपल. आई थिंक फॉर मी, मैं क्या करता हूँ, हाँ। जो सूट्स मुझे पहले बहुत फिट आते थे मैं एक बार उनको पहन के देखता हूँ.
एंड देन आई रियलाइज कि यार ये तो बहुत टाइट हो गया, एंड दैट्स द गोल, राइट? अगर मैं इसमें वापस फिट हो गया देन आई एम गुड टू गो. रियलिटी चेक। Something like that. I do that all the time. एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज न्यूट्रिशन, कि अभी हमने बात करी कि हमें वर्कआउट करना होता है, हमें डेली रूटीन भी मैनेज करना है. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइफ? एंड यार प्रोटीन लेना क्या बहुत जरूरी है? क्योंकि इट क्रिएट्स अ कंसर्न दैट इट इज समथिंग आर्टिफिशियल, मे बी गुड, मे बी नॉट गुड फॉर मी. फर्स्ट थिंग, प्रोटीन से यू मीन सप्लीमेंट, राइट? बिकॉज प्रोटीन तो फूड में भी प्रेजेंट होता है, राइट? है ना? Yeah, ओके, I सो am a very layman in workout, so you can actually correct me at the times you ओके, think. डाइट Mm-hmm. में देखो, अगर आपने कभी भी वो चीजें देखी होंगी जो हम छोटे बच्चों को देते हैं ना, Mm-hmm. सेरेलैक एंड ऑल, उसमें भी Hmm. कुछ अमाउंट ऑफ वे इंक्लूडेड होता है. ठीक है. मे बी आई एम रॉन्ग इन द नेम ऑफ सेरेलैक, बाकी चीजें भी जो हम्म. हम देते हैं ना उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वे इंक्लूडेड होता है. हम्म. अब अगर वो बच्चे वे ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? फर्स्ट थिंग. एंड ओके. इतनी स्टडीज है ना कि अगर आप वे ले रहे हो तो इट वोंट कॉज एनी हार्म अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी एलर्जी है या कोई डिजीज है जिसमें प्रोटीन इंटेक कम करने के लिए ऑलरेडी डॉक्टर ने बोला हुआ है. ओके. उसके अलावा कोई हार्म नहीं होगा. देयर इज अ सिचुएशन, कुछ लोग होते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंट, उनके लिए देयर इज हम्म. like more processed form of whey which is isolate, and normally people के लिए there is concentrate, तो उसमें कोई इश्यू हम्म. नहीं है. हम्म. अदर देन हम वे तब लेते हैं जब हमारी बेसिक सिंपल डाइट से हमारा न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा, प्रोटीन का इंटेक पूरा नहीं हो रहा. इफ यू कैन हम्म. हैव चिकन, एग्स, सोया चंक्स, पनीर एंड ऑल एवरी डे, एवरी सिंगल डे, एंड वो आप टेस्ट से बोर नहीं हो जाते तो ठीक है, मत लो यार, वे किसने बोला है? बट अगर हम्म. टेस्ट भी मैटर करता है तो फिर वे इज द, यू कैन से, गुड टू गो थिंग. ठीक एंड है. अगर मैं कैलोरीज पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, फॉर एग्जांपल इफ यू हम्म. वांट टू लूज वेट, तो हमें हम्म. कम खाना है. हम्म. तो कम खाने के लिए वे प्लेज अ मेजर रोल अगेन, बिकॉज उसमें बहुत ही, कह सकते हो, 150 के अराउंड यू विल फाइंड कैलोरीज, एंड इट विल बी हम्म. फिलिंग, प्लस वन फोर्थ ऑफ योर प्रोटीन इंटेक पूरा भी कर देगा. वन फोर्थ हम्म. फॉर दोज हु हम्म. आर एमिंग टू टारगेट अराउंड 100 grams और सो. So it's ओके. a good to go thing. एनी गुड ब्रांड दैट यू फाइंड, और मे बी समथिंग दैट यू यूज, कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है. फर्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट कि Amazon, फ्लिपकार्ट थोड़ा अवॉइड करो, बिकॉज वहां पे मैंने हम्म. ज्यादा देखा है डुप्लीकेसी और एंड ऑल. हम्म. अगर आप हम्म. ब्रांड्स की वेबसाइट से लेते हो तो दैट विल बी मोर ऑथेंटिकेट. मैंने पर्सनली मसल ब्लेज यूज किया है, मसल हम्म. नेक्टर यूज किया है, नैक प्रो यूज किया है. ये तीन है जिन पे मैं ज्यादा रिलाई करती हूँ. हम्म. एंड दे हैव दिस स्पेसिफिक कोड्स ऑफ डिस्काउंट एंड ऑल, तो ठीक है, बजट ओके. फ्रेंडली भी हो जाते हैं. ठीक है. तो इंडियन पेरेंट्स, स्पेसिफिकली इंडियन पेरेंट्स आर लाइक यार घर का खाना खाओ, हैव पनीर, दाल, छोले, वेज, नॉन वेज, जो भी ऑप्शंस है वो खा लो, बट डोंट गो फॉर दैट. सो आई थिंक देयर इज सम misconception. That's one thing, and there is some lack of faith on the chemical formation of protein instead of normal natural way. But I think, like you very well clarified, कि ऐसा नहीं है. It is just one way हम्म. or the other of consuming, and it is a smarter way to plan your fitness and intake of calorie at the same time. That's really nice. इस पूरे टॉपिक में आई हैव एन अचीवमेंट कि मेरी मम्मा तो रोज एक स्कूप प्रोटीन लेती है. Lucky you. अब वो इतना यूज टू हो चुकी है ना, इतना हैबिट पड़ गया है कि अगर खत्म हो जाता है and हम लोग भूल जाते हैं मंगवाना, तो शी पोक्स, मंगवा लो मंगवा लो मंगवा. That's really nice. So sweet of her. And talking about your professional journey, like you have done your CA and you have done your articleship experience, which is good for 3 years. जो CA से related है उनको पता है, जिनको नहीं पता, let me tell you, CA करने के लिए हमें 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है. उन 3 सालों में हम एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं. एक्सपेक्टेशंस भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय जितनी ही होती हैं, बट पे पैकेज नॉर्मल एम्प्लॉय जितना नहीं होता, एक इंटर्न के जितना होता है. सो इट्स लाइक अ ब्लेंड ऑफ इंटर्नशिप, क्योंकि उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए इंटर्न नहीं होती, और आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छी होती हैं. सो इट्स गुड और बैड इन इट्स ओन वे, बट आई हैव
seen a lot of people जो थोड़ा एंजाइटी से डील करते हैं because of the unsaid pressure they get, or maybe something in other aspects of life. So I'm just giving the context of articleship because you have been through. Maybe there will be other people जो शायद वो नहीं कर रहे, वो internship कर रहे हैं, वो studies में prepare कर रहे हैं, या life में कुछ भी हम्म। कर रहे हैं. What is your perspective on anxiety? Like, what do you think about it, and what can be the way out to manage anxiety? A big relief actually to CA students, 3 साल से 2 साल रिड्यूस हो गया ना न्यू That's कोर्स में। right. Mm-hmm. हाँ। एंड एंजाइटी, एंजाइटी एक्चुअली मेन कॉज है कि हम काम करते जाते हैं, ब्रेक्स तो देते ही नहीं है। देन वो Mm-hmm. मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है एंड देन हम ओवर थिंकिंग की Mm-hmm. साइड जाते हैं एंड देन वो एंजाइटी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। व्हाट आई हैव Mm-hmm. ऑब्जर्व्ड इन माय जर्नी, मुझे तो यही समझ Right, आया। right, right, right. एंड ऐसा नहीं है, बहुत एक्सट्रीम भी होता है किसी किसी को, किसी किसी को ये भी होता है कि यार मैंने गोल सेट किया था हफ्ते का, स्टिल आई एम नॉट डन विद दिस सेट गोल, एंड देन Mm-hmm. वो एंग्शियस होना कि यार नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, लीड्स टू ओवर Mm-hmm. थिंकिंग एंड वो एक्सट्रीम एंड चला जाता है कि भाई सीए ही नहीं होगी। Mm-hmm. Right, right. तो ये इश्यूज भी फेस किए हैं। देन जो मैंने डील करा ना इन इश्यूज से, दैट वाज द थिंग दैट हेल्प मी वाज मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। ये दो चीजों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैंने अपनी सीए Mm-hmm. जर्नी में, मतलब फाइनल की जर्नी में तो एक्सरसाइज नहीं छोड़ी है। वंस आई लेफ्ट, मेरा मई Mm-hmm. 22 में फर्स्ट अटेम्प्ट था फाइनल का। तो Mm-hmm. मैंने आई गेस दिसंबर से छोड़ दिया था जिम। आई थॉट मैं Mm-hmm. होम वर्कआउट कर लूंगी, कोई नहीं कोविड में भी करा, बट नहीं होता क्योंकि आदत Mm-hmm. पड़ जाती है, जिम ओपन है क्यों ना जाऊं। बट स्टिल आई Mm-hmm. अवॉइडेड कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तक तो मैं नहीं जाऊंगी। Mm-hmm. एंड वो एक्सरसाइज ना करना लेड टू इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर ना कि मैंने मई में 2 एग्जाम दिए, जैन में भी आई फेल्ट लाइक छोड़ दे सीए नहीं करनी, छोड़। आई Mm-hmm. वॉज प्रिपेयर्ड फॉर 2 ग्रुप्स, मेरा सेकेंड रिविजन चल रहा था जैन में एंड मई Mm-hmm. में अटेम्प्ट था, बट आई वाज लाइक छोड़ दे नहीं करनी। एंड उस टाइम भी ये नहीं लगा कि जाके एक्सरसाइज कर लूं या कुछ ऐसा कर लूं विच विल गिव मी Mm-hmm. सम बूस्ट कि हाँ नहीं यार करना है। ना Mm-hmm. मैंने ब्रेक लिया ना मैंने कुछ लिया, आई वॉज कॉन्टिन्यूसली स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग। देन मेरा Okay. अटेम्प्ट आया, 2 एग्जाम्स दिए, अच्छे हुए, Mm-hmm. ऐसा नहीं कि खराब हुए एंड आई एम लाइक यार छोड़ देते हैं। दोनों एग्जाम्स Mm-hmm. अच्छे हुए, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड या वो मेंटल वर्स्ट क्या हुआ। थर्ड एग्जाम पे आई वाज लाइक मम्मी मैं नहीं कर रही, मैं जा ही नहीं रही एग्जाम के लिए, ऑडिट का थर्ड एग्जाम था एंड आई वाज लाइक नहीं मेरे को नहीं देना, Oh, होगा okay. ही नहीं मुझसे। एंड आई वाज Mm-hmm. क्राइंग द एंटायर डे। तो वो आधा दिन तो गया, 1.5 दिन तो वैसे ही पूरा मिलता है। आधा Mm-hmm. दिन गया, नेक्स्ट डे भी मैं माइंड मेकअप कर रही थी, नहीं देना नहीं देना नहीं देना, जाके बैठाऊंगी कोई नहीं, पढ़ लिया ना देखी जाएगी। आफ्टर लाइक वेस्टिंग नेक्स्ट डे का भी हाफ डे, उसके बाद मैंने थोड़ा उठाया, मैंने कहा चल कंपनी ऑडिट देख लेते हैं यार, थोड़ा सा मेजर पोर्शन तो यही है। उठा के पढ़ा, नहीं पढ़ा गया, 1% पढ़ाई नहीं हुई है, मैंने जाके पेपर दे दिया। मुझे नहीं पता मैं ऑडिट में क्या लिख कर आई हूँ। आप Mm-hmm. यू ऑल्सो नो कि ऑडिट की चेकिंग कैसी होती है, दे नीड स्पेसिफिक थिंग्स। Correct, मैंने correct. कर दिया पेपर। उसके बाद मैं मतलब जैसे तैसे उन्होंने मुझे बूस्ट किया कि नहीं ठीक है, चौथा पेपर भी दे दे। Mm-hmm. उसके बाद सेकंड ग्रुप भी दे दे, वो बूस्ट करते ही गए हैं, जैसे तैसे मैंने जाके दे दिया। Mm-hmm. एंड लकीली फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया, सेकंड ग्रुप रह गया। डिजर्विंग था, सेकंड ग्रुप रहना भी चाहिए था, मेरी गलती थी वो, ठीक है, ठीक है. उसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। रहा Mm-hmm. बल्कि वो मार्क मतलब कह सकते हो 8 मार्क्स से रहा था एग्रीगेट में, बट ठीक है अब रह गया। उस टाइम भी लगा कि यार क्या यार क्यों, छह मतलब महीने की मेहनत थी वो क्यों। एक दिन ना पढ़ के भी अगर 6-8 मार्क्स से रह रहे तो फिर तो सही था. And if you had given some time to it, you would have, right? मैं बिल्कुल नहीं पढ़ के गई थी, मैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसके बाद पढ़ के ही नहीं गई हूँ, Hmm, एक्सेप्ट hmm, फॉर hmm. ओपन बुक की एग्जाम्शन ले आऊंगी छूट जाएगा। पहले की रिविजन्स काम आई एंड उससे Hmm, दिखा कि यू कैन डू इट। hmm. And like taking a break, does it help? Like in dealing with anxiety, कि यार आपने जैसे बोला कि थ्रू एंड थ्रू अगर आप पढ़ ही रहे हो या थ्रू एंड थ्रू आप काम ही कर रहे हो, सो यू डोंट हैव टाइम फॉर अदर थिंग्स. बट इज इट जस्टिफाइड कि यार अगर हम एक चीज को टाइम देते हैं एंड देन वी गिव सम टाइम टू अदर थिंग, और मे बी गिव सम टाइम टू आवरसेल्व्स टू रेस्ट, सो डज दैट हेल्प टू डील और कोप अप विद एंजाइटी? यस इट इट डज. डज। अगर मैंने
मैं नवंबर 22 क्लियर्ड हूँ। अगर मैंने जैन में हम्म, खुद को ब्रेक दे दिया होता तो मेरा एक अटेम्प्ट पीछे होता, दैट्स फॉर श्योर। राइट। तो इवन इन प्रोफेशनल लाइफ यार, हम अपने ऑफिस जॉब एंड इस सब में भी इतना वर्कड अप हो जाते हैं ना कि कभी कभी तो सैटरडे संडे भी चला जाता है काम के चक्कर में। वर्क फ्रॉम करेक्ट। होम है तो फिर तो खत्म। समझ गया। हाँ, तो फिर तो खत्म, वर्क फ्रॉम होम में तो वी कांट एस्केप थिंग्स। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, गो तो ऑन। उस टाइम भी वी कैन सिक लीव ले यार, बट चिल करो, एक दिन ले लो खुद के लिए, कुछ नहीं हो रहा। मैनेजर को भी पता है कि तुम छुट्टी किस क्या बोल के ले रहे हो। फाइन। वर्क फ्रॉम होम का मतलब दो एस्पेक्ट्स हैं। एक, जैसे आपका ऑफिस बहुत दूर है तो इट बिकम्स हेल्पफुल, यू डोंट हैव टू ट्रैवल, बट the work doesn't leave you until the working hours, so that's the con. So if you can create a balance between that, then you can do it. And which reminds me, I saw one of your posts around work life balance को बनाते बनाते बैलेंस का मतलब क्या है वही भूल गए। दैट वाज जस्ट फॉर फन। मेरी एट प्रेजेंट मेरे मैनेजर एंड मेरी टीम इज सो नाइस, मुझे कोई टेंशन नहीं है उस चीज की, एंड आई एम लकी इन दैट, सीरियसली। So वो the तो बस ऐसे mantra, ही इंस्टाग्राम का so एल्गोरिदम। but I think it did well, right? So the mantra for it is that you should always have work-life balance. कि यार life तो चलती रहेगी and you have to manage and balance your way out of it. Give yourself some time. Don't underestimate कि सामने वाला 10 घंटे काम करते तो आपको भी करना चाहिए. Do something which is practical, do something which is sustainable, and I think that can make a lot of sense in a long run. I'll add, do something which makes you happy, like you are Hmm. satisfied with your life, you are earning Hmm. for yourself and your family now, then Hmm. कुछ तो ऐसा करो कि खुश रहो। इतना Right, right. वर्कड अप कुछ नहीं चलेगा। I think it's all about setting up a priority, and when you are working for the resources, then use your resources towards your priority, and it can be anything. Like for Pricha, it's fitness. For me, it's working on this project that I do in my expert story talks. So it can be anything, and you may get inspired from one or the other person and True. try to work it out for your life. Okay, so the next one is a funny part. So इसमें क्या होगा? I'll ask you a few questions. You have to tell some small sweet memory out of it, what you think about it, Okay. or what comes to your mind for the first time, right? So it can be anything. There's no rapid fire, so take your time to answer, and it can be Okay. as comfortable as you want to be. The first question is कि articleship training क्या आप फिर से करना चाहोगे 3 साल की? नहीं। बहुत spontaneous. मेरी ट्रेनिंग नहीं। अरे, I Okay. fighted a lot to get it signed. I fighted like extreme. तो नहीं, people are like कि उनको लड़ना Mhm, पड़ता है, सच बताऊं तो। mhm, स्मॉल mhm, फर्म्स हो, मिड साइज फर्म हो, दे ऑल्दो दे ग्राइंड अ लॉट, उसके लिए ठीक है, हमें आदत पड़ जाती है आगे के लिए, बट ठीक है, थोड़ा सा mhm. सेंटिमेंट्स भी रखो ना हमारे लिए, काम कर रहे हैं हम। ठीक है. The second one is, what was your first fitness injury? मुझे शोल्डर पे पिंच होता था ड्यूरिंग हम्म. स्क्वाट्स। पहले मैं ना पावर लिफ्टिंग के लिए प्रिपेयर कर ली थी, बट उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं इतना मैनेज हो पाया, तो आई लेफ्ट। तो वो ठीक प्रिपेयर है. करते टाइम ही ना, स्क्वाट्स के टाइम आई फेल्ट अ पिंच शोल्डर्स के यहाँ। हम्म. तो दैट वाज द फर्स्ट इंजरी, एंड वो तो अराउंड 3-4 मंथ्स ले गई थी ठीक होने के लिए, एंड उसके बाद ओके. व्हेन आई लाइक दोबारा मैंने स्क्वाट किए, एंड उस टाइम जो डोपामाइन रिलीज हुआ, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। ट्रू. आई थिंक अगर आप वर्कआउट करते हो एंड डोपामिन की वजह से जो एक एड्रेनलिन रश आता है एज अ पर्सन, तो दैट ड्राइव्स यू वेरी क्रेजी एंड वेरी हैप्पी. सो आई कैन टोटली रिलेट. ट्रू। What was the experience when you earned your first income from fitness coaching? Because you have been mentoring people. So how was it and what was your experience? ओके। एक्चुअली हुआ क्या था, फॉर्म्स रोल आउट किए थे कि Hmm. फिल द फॉर्म एंड टीम विल कनेक्ट एंड ऑल। तो Hmm. अराउंड 50 इंक्वायरीज के बाद फर्स्ट क्लाइंट रोल हुआ, बिकॉज Okay. बैकग्राउंड नहीं था, रिजल्ट्स नहीं थे उन्हें दिखाने के लिए। उनको भी Hmm. ट्रस्ट करना थोड़ा, ऑब्वियसली पीपल विल नॉट ट्रस्ट अगर उनके पास रिजल्ट्स नहीं। तो जब Correct. फर्स्ट क्लाइंट एनरोल हुआ ना, तो आई वाज लाइक फाइनली, 50 कॉल्स के बाद एक क्लाइंट आया।
स्टार्टिंग में प्राइस इतना लो रखते हैं ना कि यार एटलीस्ट एक्सपीरियंस के लिए कोई तो आए, हमें भी सीखने को ही मिलेगा, हमें भी दूसरे दूसरे लोगों से डील करना है। एंड वो कॉल्स पे भी 50 कॉल्स अराउंड थे, एंड वो 50 कॉल्स वर लाइक सबके अलग अलग सिमिलर क्वेश्चंस, तो किसी के नहीं है, सबके अलग अलग ही प्रॉब्लम्स है लाइफ में। किसी को ऑफिस मैनेज नहीं हो रहा है, किसी को घर वाले कुछ नहीं करने देते हैं, किसी को गर्लफ्रेंड कुछ नहीं करने देती है, बस लाइक क्या यार, कोई एनरोल तो करके जाओ। Okay, okay. इट And वाज what did you लाइक do with नेक्स्ट your लेवल फीलिंग। first income? क्या करा उस first income से? कुछ भी नहीं, सेव करके साइड कर दी। Reinvest. That's a good word. What would you pick between winter, get out of the bed, go for workout, or winters, Netflix and chill? फर्स्ट वन ऑब्वियसली। क्यों आप बिल्कुल नेटफ्लिक्स नहीं देखते या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? नेटफ्लिक्स रात को देख लेंगे, सुबह वर्कआउट करके खत्म कर दो, गिल्ट फ्री हो जाएंगे। हम्म वो मिस हो हम्म। गया था, फिर पूरे दिन अलग गिल्ट होगा कि यार वर्कआउट छोड़ दिया, वर्कआउट छोड़ दिया। If you are asked to sit for those 8 exams of CA final, would you want to take that challenge again to prove that you can deliver better? नहीं, दोबारा नहीं पढ़ना वो सब, स्पेशली ऑडिट। आई थिंक इसमें दुनिया में कोई बंदा हाँ नहीं करेगा कि हाँ मैं फिर से एग्जाम देना चाहता हूँ ताकि यार आई मैं क्लियर्ड प्रूव कर ऑन पाऊँ। बॉर्डर ना, 200 पे क्लियर हुआ था मेरा। मैंने पता है मतलब कितने पे फर्स्ट ग्रुप क्लियर करा था? 200। मैंने कितने पे कितने क्लियर पे? आई क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स टुगेदर। 8 सब्जेक्ट दिए, 800 मार्क्स टोटल थे। So you have to score at least 50%, which means 400. तो मेरे 400 ही आए थे। So I'm a आपको उस दिन firm लगा believer। होगा दैट यू आर द लकीस्ट पर्सन। ऑल इंडिया रैंक 1 और मैं बहुत खुश थे उस दिन। हाँ। आई एम अ फर्म बिलीवर कि आपको यू हैव टू एंजॉय द जर्नी। देयर इज नो बैकग्राउंड कि यार आपने कितने मार्क्स से सीए करी, आपने सीए करी, आपने कर ली एंड यू आर अ सीए, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। सो इट वर्क्स लाइक दैट, सो ट्रू। लेट इट बी। Okay, the next one is your favorite client testimonial. सो देयर वाज अ क्लाइंट, आई विल नॉट Hmm. नेम हर, एयरपोर्ट से ही थी एंड वाज वर्किंग फ्रॉम होम एंड शी लॉस्ट अराउंड 10 kgs, एंड उसके बाद शी वाज लाइक यार आई कैन मैनेज ऑन माय ओन अब। एंड उसके बाद आई वोंट लाइक रिन्यू नहीं करूंगी मैं, आई विल डू इट Hmm. ऑन माय ओन। देन आफ्टर अ मंथ मेरे को दोबारा मैसेज आता है, आई हैव लॉस्ट 5 kgs मोर, थैंक यू फॉर ऑल दी लाइक लर्निंग्स एंड ऑल थ्रू आउट दी जर्नी। बिकॉज मेरा क्या रहता है, आई मेक देम लर्न कि तुम्हें डाइट मैनेज कैसे करनी है, ना आगे तुम डाइट बना कैसे सकते हो अपने लिए, ताकि मेरी Hmm. जरूरत तुम्हें लाइफ टाइम ना पड़े। वो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स आर इनफ फॉर यू। दैट वाज द वन जो दोबारा आके मुझे बोल के गई थी, नहीं यार मेरा और भी हुआ है, सो प्लीज कीप इट इन योर रिकॉर्ड्स। That's so sweet. Coming up and acknowledging is so sweet. Okay, this is the final one. What is your favorite workout? Like among all the days, leg day, chest day, abs, bicep, tricep, what is your favorite day amongst these workout days? Days, I would say back, because on back days I do deadlift, and deadlift is my favorite. Okay, that helps. All right. Thank you so much, Pricha, for your precious time. It has been a long hustle to follow up with you, and finally, we are concluding one beautiful Finally. video. Thank you Yeah. so much for your time once again. Have a great time of this year and the coming years, and on your projects. Would you like to mention your channel and the coaching program that you run so that people can reach out to you? I guess I'll share you the link. You can add in the description, because Prichha search karte time na, they will be like the spelling error and all. Otherwise, it's Prichha_Chawla on Instagram, on Twitter, and Hmm. on YouTube. On YouTube, I have a channel with my partner, and it's named as Life Tales. You can follow us for, you can say, motivation and everything. You will get there. Okay, sounds like fun to me. Thank you so much once again, and I'll take your lead, guys. Thank you so much for tuning into my expert story Thank talks. you. We'll see you in the next one.